everyone, welcome to Basi Academy. Today I am Aditi Mishra, your physics teacher, has came here in the lecture 3 of gravitation. In the earlier video, we have talked about free fall, acceleration due to gravity, force of gravitation, force of gravity, and many other things. Let's revise the before concept, the concept which we had learned earlier. First of all, revise that. Gravitation. We will start from gravitation. Okay. Movement or tendency to move towards a center of gravity, as in falling of a bodies to the earth, is known as gravitation. मतलब कि जो फोर्स हम लोगों को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं. जैसे इस हमने टोटल कंटेंट्स हैं gravitation, Kepler's law, universal law of gravitation, force of gravitation on earth and on moon, acceleration due to gravity, free fall, and mass and weight. We have completed the free fall, just only mass and weight is left, but we need to revise everything once again so that it would be very easy for you. So gravitation is the force of attraction through the earth is known as gravitation, or it can be written as movement or a tendency to move towards a center of gravity, as in the falling of bodies to the earth is known as gravitation. मतलब कि कोई भी बॉडी जो अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है वो अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, पर एक क्रस्ट जो बीच में उसके लेयर आ गया ना, उसी के कारण क्या चक्कर हो रहा है कि हम क्रस्ट पे हैं. अगर क्रस्ट नहीं होता हम डायरेक्टली कोर के अंदर चले आते हैं. समझे? ये है ग्रेविटेशन. इस पूरे चैप्टर में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस जानना है, तो हमें इसके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाएंगे. ठीक है. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two particles in the universe is called gravitation और gravitational force. मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी दो पार्टिकल्स के बीच में, यूनिवर्स में किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है जिससे वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. दिस आर द एग्जाम्पल्स. इन द अर्लियर वीडियो आई हैड मैं आपको ये सब कुछ दिखाया भी था. ठीक है. Without wasting our time, we will move forward. There were 3 laws of Kepler's. Jonas and Kepler have 3 laws related to planet and the sun: law of orbit, and law of areas, and law of period. These were the 3 laws. In the law of orbit, it was told that planets move around the sun, not sun moves around the sun move नहीं करता planet की तरफ चारों तरफ. प्लैनेट मूव करते हैं सन के चारों तरफ इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द ऑर्बिट. ये फर्स्ट लॉ था. सेकंड लॉ क्या था कि ए बी एस और एस एक्स वाई के तीनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा. ठीक है. ये था द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट equal area and equal interval of time. Let a planet move from position A to B in time t, and then it moves from position X to position Y in same time t. Then according to Kepler's second law of area, triangle is forming. हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रायंगल एस बी ए और ट्रायंगल एस एक्स वाई ये फॉर्म हो रहा है, जिनके एरिया दोनों की एरिया क्या होगी, ऑलवेज इक्वल. लॉ ऑफ पीरियड टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज कॉन्स्टेंट एज वेल. जब प्लैनेट सन के पास ज़्यादा नियर होता है, प्लैनेट सन के पास ज़्यादा होता है तो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है. और एज वेल, और जब वो फार अवे होते हैं उनकी स्पीड क्या जाती है, कम हो जाती है. और स्क्वायर ऑफ टाइम जो है लेट टेक अ प्लैनेट ए, उसका जितना समय लगता है स्क्वायर ऑफ टाइम उतना उसको टाइम का स्क्वायर, और रेडियस मतलब रेडियस यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे डिस्टेंस. ठीक है. कांस्टेंट एस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और टी इक्वल्स टू कांस्टेंट आर क्यूब, और टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट. Universal law of gravitation we have talked about in very good way.
as the formula to find the force between two objects, a body A and body B with mass 1 and mass m1 and m2, that force between these are, the formula is G into m1 into m2 by r square, where G stands for 6.67 into 10 to the power minus 11. X gravity is the acceleration with ये इस प्रकार के एक्सेलरेशन है. देखो, ग्रेविटेशनल पुल तो सबके पास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबके पास होता है, पर जो ग्रेविटी है, द टर्म ग्रेविटी इज ओनली कंसीडर्ड टू द अर्थ बिकॉज इट है, ये सिर्फ किसके पास होता है, अर्थ के पास होता है, जिसकी वजह से अर्थ की तरफ जो सारे मेट्रॉइड्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, and which is denoted by small g, whereas gravitation is denoted by capital G, and their values are two different. This G value is 10 meter second square, or as well its value is 9.8 meter second square. It's approx, and this is the factors on which acceleration due to gravity, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. फ्री फॉल बताया था, अ फॉलिंग बॉडी ऑफ विच ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ एक्ट्स इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. मतलब कि जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम बॉल हवा में फेंकते हैं, वो कितना डिस्टेंस कवर जो करता है, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या करता है, वहाँ पे स्टॉप कर देता है फॉर 1 सेकेंड और मोर देन टाइम, देन इट्स कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. This acceleration, this types of acceleration is called free fall. Exam picture show freely falling object. And we are near to the last topic, mass and weight. If we go to hospital to doctors, there is a weight checkup, but it's not the weight. We are not finding the weight. It's just told that it's weight. The value of weight is mass into gravity. Mass into gravity is the value of weight, mass and weight. ठीक है, तो mass है क्या, mass of a body is defined as a quantity. mass क्या है, किसी भी बॉडी का क्वांटिटी है, ठीक है, ये है क्वांटिटी, ठीक है, कोई क्वांटिटी है, और दिस मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. मतलब क्या, इनर्शिया हमने क्या पता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी. तो इनर्शिया ऑफ मास, ठीक है, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मास. और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम. अब वेट क्या है, द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी. मतलब जिस फोर्स से कोई भी बॉडी क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी. अब डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अब मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या है, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट ऑफ द बॉडी इज बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मतलब जगह से जगह पे आपका बॉडी का वेट चेंज होता रहेगा, पर मास हमेशा कांस्टेंट. पर बॉडी का मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड बट इट कैन बी ज़ीरो इन द सेंटर ऑफ द वर्थ ऑफ द वेट. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass measured in kg, but weight is measured in kg, kilowatt or Newton. Mass is measured by beam balance, whereas it mating machine or spring balance. Some important notation for you. Radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. Mass of Earth is 5.98 into 10 to the power 24 kg. Capital G constant, gravitational constant is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square second square, whereas small g is acceleration due to gravity which is 9, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर. और एक्सलेशन ऑन द मून, मतलब कि जो जी है, जब भी अगर आपका वेट यहाँ पे अर्थ पे जो है 60 kg है, तो जब आप मून में जाओगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. तो मतलब आप 10 ही किलो के होगे मून में, ठीक है. यही चैप्टर, इस चैप्टर में बस इतना ही है. थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.